वही आपकी शब्दावली में थी और उच्च न्यायालय ने उसकी टिप्पणी की. But the answer is very simple. If you have to apply the word central list, the Supreme Court could have said that the 2018 law applies and should be limited only to central services or central entities or central organizations. It cannot possibly be relating to entities under the direct control and management of the state. That also they did not do, which is the fifth mistake of the Supreme Court, which is why we are trying to undo it. And lastly, the other question asked in the majority judgment is, then why did they have this change of language in 342A? And we are giving effect to the language of 342A and thereby saying that states don't have the power. Well, the answer is clear. The main object of the change, and that is seen in 342A(2), is that the idea was that once the president approves the central list, only parliament can change it. It was to insulate from frequent casual changes. It was not to erase the state list at all. And that is why I think a historic blunder was made by at least two entities. The dissent has been very clear, has set it right, but unfortunately a dissent is a dissent. Is that the intent of parliament is crystal clear. It's so clear in the select committee, it is so clear in the house. But unfortunately the dissent was a 3-2 judgment, so the dissent was not operative. अब दोस्तों दूसरे बिंदु पे जाना जरूरी है, और दूसरा बिंदु शायद पहले बिंदु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है. आपने एक गलती तो आज ठीक कर दी इस संशोधन द्वारा, या कर देंगे शाम तक, क्योंकि सभी इस पे सहमत है. लेकिन इस गलती को ठीक करने का फायदा क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा? इस संविधान संशोधन में आपने एक शब्द भी नहीं बोला है 50% आरक्षण के सीमा के विषय में, एक शब्द नहीं है. अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं. जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, जिसका एक्चुअल केस था उच्चतम न्यायालय में, उसकी तो यात्रा खत्म इसलिए हो गई कि उनके एक्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र एक्ट को निरस्त कर दिया इस आधार पर कि 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते. अब 50% सीमा के बारे में आज अगर आप एक संशोधन करते हैं, वो भी संविधान का जो कहते हैं अधिकार क्षेत्र है सभी प्रदेशों का, कि आप सूचियां बनाओ, और हम सब सूचियां बनाते हैं, सब प्रदेश, उस सूची करेंगे क्या? उस सूचियों से क्या करेंगे? वो सूची जो बनाएंगे भविष्य में, वो उस बर्तन जैसी है जो खाली है, आवाज निकाल सकती है, खाना नहीं खा सकती. यानी एक प्रकार करीब करीब 75% प्रदेश इस देश के, प्रदेश के बिना मतलब यूटी भी है, 75%, 80% हो, ऐसे हैं जहां की ये 50% की सीमा आगे निकल गई है, उल्लंघन हो गया है. तो वो करेंगे क्या इसके साथ? आप उनको एक कागजी दस्तावेज दे रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और एक झूठा वायदा दिखा रहे हैं. एकदम सही. एक ऐसा सब्जबाग दिखा रहे हैं दोस्तों, एक ऐसा सब्जबाग दिखा रहे हैं जो कानूनी संवैधानिक रूप से कार्यान्वित कभी हो ही नहीं सकता, और वो आप आज जानते हैं. तो बात नहीं, हम ये जानते हैं कि आजादी भी, जब मैंने ये आंकड़े देखे, 30 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज ऐसी 30, इस देश में शायद सिर्फ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी, 36-37 एंटिटीज, 30 ऐसे हैं जो कि 50% से ज्यादा है. दैट इज मोर देन 80% परहैप्स. नागालैंड में कितना है? 80. छत्तीसगढ़ में 82% है. याद रखिए 72% सामाजिक और 10% आर्थिक, जो आपने संशोधन किया था अभी संविधान का, ईडब्ल्यूएस. सो 72 + 10 82. नागालैंड में 80, मिजोरम में 80, मध्य प्रदेश में 63 + 10 यानी 73. तमिलनाडु तो पुराना है सबसे, इसमें 69, 70. महाराष्ट्र में 65 और ईडब्ल्यूएस कार्यान्वित होने का प्रस्ताव था और है. तो आप इसको देने का मतलब क्या हुआ? Without constitutionally legitimizing this, are you only giving an empty piece of furniture, an empty piece of utensil, or an empty, meaningless piece of paper? There should have been, there must have been an attempt, Honorable Minister. Everybody in the House would demand it, I would imagine, to address this issue at least. We are not saying you address it perfectly, but you have not addressed it. And Balaji, a rule of the 1950s, is not cast in stone. It's not inflexible. These issues are dynamic. They are ever changing. That is why we asked in the Supreme Court for a reconsideration of Indira Sani. The court refused. But the very nature of the beast is such that it is ever changing. It's a timeline. So you cannot stick to a 50% figure as sacrosanct. Well, you know that the courts have ruled now. Indira Sani has been reiterated by many judgments, and the most recent judgment says 50% and no more. Interestingly, by the way, there are escape routes given. Escape route क्या दिया है कि हाँ अपवाद हो सकता है इसका. अपवाद ये है 50% का कि एक ऐसा अजीबोगरीब स्थिति हो सामाजिक, या अजीबोगरीब स्थिति हो ज्योग्राफिकल, क्षेत्रीय. अब वो इतनी अजीबोगरीब है स्थिति कि किसी प्रदेश में उसका पूर्ति हो ही नहीं सकती. तो इसलिए यद्यपि 50% को माना है कि वो पत्थर में लकीर की लकीर नहीं है, फिर भी उसको ऐसा बना दिया गया है कि वो कार्यान्वित होने में असंभव है. इसलिए आज इस डायनेमिक सिचुएशन को देखते हुए ये अति आवश्यक है. आज अगर आपने ये पहला भाग जो आज आपने किया है नहीं किया होता, तो जैसा कि दूसरे सदन में कहा गया है 671 ऐसे समुदाय थे जिनसे आरक्षण हट जाता, जहां तक अधिकार क्षेत्र है प्रदेशों का. लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि वास्तविकता ओबीसी आरक्षण की क्या है, जिसके लिए आपको ये 50% आंकड़े को वापस सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए था, क्योंकि दूसरी त्रुटि है, दूसरी बहुत बड़ी त्रुटि है इस बिल में. 41,000 सीट्स विभिन्न प्रदेशों ने मेडिकल, डेंटल इत्यादि में अखिल भारतीय कोटा में दी. 81,000. क्या आपके मंत्रालय ने अवलोकन किया है कि इसमें से कितनी ओबीसी को गई? वहां तो सरेंडर हो गई. ओबीसी को नहीं के बराबर. ये आंकड़े भी आए हैं, पहले भी आए, उस सदन में भी थोड़े रह गए. आज अगर सही आंकड़ा हो तो 22% से कम वास्तविक ओबीसी आरक्षण है सरकार के रोजगार में. 27 कहते हैं आप, 22 है वास्तविक.
और उसमें भी अधिकतर है ग्रुप सी कैटेगरी, ग्रुप ए और बी में नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और ये लाता है मुझे एक और महत्वपूर्ण बिंदु में कि आप जाति संख्या कास्ट सेंसस से क्यों दूर भाग रहे हैं। कास्ट सेंसस से आप क्यों दूर भाग रहे हैं, कतरा क्यों रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री बिहार, अन्य मुख्यमंत्री उड़ीसा और आपके सांसद ने कल कहा, माननीय महिला ने, कि ये तो आप करने वाले हैं, तो आप सरकार चुप क्यों बैठी है। मंत्री महोदय क्यों नहीं कहते, सरकार के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, क्या आप उसको नहीं करना चाहते, ये भी कह दीजिए नहीं तो। और या इसका सही कारण ये है कि आप जानते हैं कि शायद असली आंकड़ा 42% या 45% हो सकता है अगर आप कास्ट सेंसस करें तो। हम मानते हैं, हमने किया एक सेंसस, याद रहे 2011 में हमारी सरकार ने किया, उसमें त्रुटियां थी, मैं खुद कह रहा हूं, मानता हूं, लेकिन प्रयत्न किया। आज 2021 आज 2021 में जब आप ये ला रहे हैं संविधान संशोधन, तो इसका एक तीसरा पहलू पूरी तरह से वंचित है, यानी कास्ट सेंसस, और इसकी मांग सब जगह है। मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार से आप कतराते हैं, कभी बदलते हैं, कभी अपने आप को बधाई देते हैं, तो तुम्हारा क्या या तुम्हें क्या, तुम्हें तो आसान है बहुत रास्ते बदलना, तुम्हें तो आसान है बहुत रास्ते बदलना, हमें हर एक मौसम काफिले के साथ चलना है। तो आप ओबीसी काफिले को सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं, हमेशा उसके साथ नहीं चल रहे हैं। अंतिम बिंदु, जो छोटा बिंदु है, 2 मिनट और लूंगा, 3 मिनट और वो है एक और सुझाव, मैंने कई सुझाव दिए हैं, एक और दे दूं। जो गलत वाला कानून आपने ड्राफ्ट किया 2018 में 342A, जिसको आज आप संशोधन से 3 वर्ष बाद ठीक कर रहे हैं, उसी प्रकार से इस संशोधन में एक और गलती नहीं करी है, और वो ये है कि हमारा सबका, आज हर मेंबरान का, सरकार का, मंत्री का, माननीय सांसदों का उद्देश्य और मायने और मतलब ये है कि कानून ने कभी 18 से लेकर आज तक ये अधिकार क्षेत्र लिया ही नहीं, ये हमेशा से वहीं था। ये तो गलत इंटरप्रिटेशन उच्चतम न्यायालय का है, लेकिन ये अधिकार क्षेत्र हमेशा से स्टेट में था। इन इंग्लिश इट इज सेड, इट वाज ऑलवेज देयर इन द लॉ, इट इज ओनली अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, व्हिच इज व्हाई यू हैव पुट इट इन दिस बिल that it is a clarificatory amendment, which is fully understandable. Lawyers understand clarificatory to mean that there is no amendment, it is only clarifying what has always been there, which is good. But you have not said anywhere, sir, that this amendment shall apply from 15th August 2018 or 11th August. Now I agree with you that your intention is clear, but the last time the path to hell was paved with good intentions. Now today if a court holds that this amendment which you call clarificatory will apply from today, then for 3 years this country, no states list would be valid, strictly speaking. So you should kindly add one more line, that it is clarified that this shall apply from a given date, and clause 1, 2 or any other clause can be put. It's a one line, half a line, and sometimes ऐसी जिदें महंगी पड़ती है. Sometimes these make one, then a second mistake, and then a triple mistake. To use James Bond's terminology, he said, one is happenstance, twice is coincidence, third is enemy action. Who will be the enemy in this mistake? I don't know. You know very well. Who will be considered the enemy? So therefore, मैं ये अंत कर रहा हूं अपनी बात। माननीय सभापति, आपने तो थोड़ा ज्यादा अतिरिक्त समय दिया, इसलिए 1 मिनट में 30 सेकंड्स में, कि ये गलतियां वापस न करें। नहीं तो एक बार हमेशा आता है सदन में कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, उसको ध्यान रहे। एंड लेट अस नॉट टेम्प्ट फेट अ थर्ड टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। माननीय सुशील कुमार मोदी, माननीय